السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد۔ عزیز طلبہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ابھی آپ سبق نمبر 17 جس میں آپ افعال کے متعلق الفاظ پڑھ رہے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا، تو آئیے ہم اور نئے الفاظ افعال کے بارے میں ہم لکھاتے ہیں۔ آپ انہیں لکھیے اور میرے ساتھ پڑھتے رہیے اور یاد کیجیے، جملوں میں بھی استعمال کیجیے۔ تو سب سے پہلے آپ یہاں پھر سے آپ ہیڈنگ یہاں ڈالیے افعال، یہاں کالم بنا لیجیے، پہلے نمبر پہ افعال کا کالم، اور افعال کے بعد جو ہے معانی، جو ترجمہ آپ لکھیں گے افعال کا، اس کے بعد لکھے ابواب۔ تو اس طریقے سے آپ الفاظ، معانی، ابواب لکھتے ہیں، ہمیشہ ساتھ ساتھ لکھتے رہیے۔ ابھی لکھیے زأرا، یہاں جو ہے زأرا، دہاڑا، شعر کی آواز کے لیے دہاڑنا ہم اردو میں بولتے ہیں، اسی کو عربی میں زأرا کہتے ہیں، دہاڑا، دہاڑا، زأرا یزأرو، یہ جو ہے باب فتحہ یفتح سے آتا ہے۔ زأرا یزرو بھی کہیں کہیں استعمال ہوتا ہے، باب پہلے فتحہ لکھ لیجئے، ضربہ سے بھی اس کا استعمال ہے۔ تو زأرا یزأرو، زأرا یزئرو، ایسے ہی خارا، دیکھیے یہ سب الفاظ ہیں جانوروں کے الگ الگ۔ تو نہقا، خارا، زأرا، تو خارا یہ کہتے ہیں بیل کی آواز کو، تو بچڑے نے آواز کیا، تو یہ خوار عربی میں اس میں آتا ہے، خارا یخورو خوارن، تو خارا مانے بیل نے آواز کیا۔ اب ڈکرانا یا ڈکارا بھی بولتے ہیں، بیل نے جو آواز کیا اس کے لیے، ایک لفظ میں کہیں گے بیل نے ڈکارا، آواز کیا، تو خارا بیل نے آواز کیا، یہ باب نصرہ سے ہے۔ یخورو یہاں دیکھیں فعل مضارع بھی آپ دیا ہے، یخورو، بیل یا گائے جو بھی ہے آواز کرتا ہے یا کرے گا، تو یہ باب نصرہ سے آتا ہے۔ خارا یخورو یہ بیل کی آواز کے لیے خاص لفظ ہے۔ لبسا یلبسو، لبسا لباس آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، تو لبسا کے معنی ہوتے ہیں پہنا، لبسا پہنا، لباس اسی سے آپ سنتے ہیں۔ تو فعل ماضی کیا ہے؟ پہنا، باب سمعہ سے آئے گا، یہ باب سمعہ، سین لکھ دیجیے۔ تو سمعہ اسمو لبسا یلبسو، لباس اسی سے بنا ہے۔ استعد، دیکھیے کوئی کام آدمی کرتا ہے تو تیاری کرتا ہے، تیار ہوتا ہے، تو اس کے لیے تہیا کیا اردو میں بھی بولتے ہیں، استعد، مستعد ہوا کہتے ہیں، تو یہ الفاظ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ استعد یہ اسی سے مستعد بنا ہے، استعد، مستعد ہوا، استعد مانے مستعد آپ لکھ سکتے ہیں، یا جو ہے تیار ہوا آپ لکھ دیجیے، کہتے ہیں میں اس کام کے لیے مستعد ہوں، تیار ہوں، تو یہاں استعد مانے تیار ہوا، تیار ہوا۔ اب یہاں استعداد آپ اردو میں بھی سنتے ہوں گے، اس کا جو مصدر ہے، اس کا باب جو آتا ہے استفعال، استعمال، استفعال، یہ بہت کم الفاظ اس میں سے آئے ہیں، آپ یہ بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے ان ابواب کے بارے میں۔ تو استفعال، استعداد، یہ جو ہے استفعال کے وزن پہ آتا ہے، استعد، استفعل۔ ہاں، تہیّأ، اردو میں بھی آپ دیکھیں تہیّا کیا بولتے ہیں، کوئی کام آدمی جو ہے جب سوچ لیتا کرنے تو کہتا میں نے دل میں تہیّا کر لیا ہے، تو تہیّا، تہیّأ، تہیّا، یہ تھوڑا مشکل ہے عربی کا لفظ ہے، تہیّأ لکھ لیجئے اور پڑھتے رہیے، تہیّأ، تہیّأ، اس کے معنی بھی استعد اور تہیّأ دونوں ایک ہی معنی میں، تیار ہوا۔ ہاں، یہ تہیّأ تفعل کے وزن پہ آتا ہے، یہ باب تفعل، آپ اس میں لکھ لیجئے، زیادہ پریشان نہ ہوں، کچھ افعال ہیں جو آپ کو بعد میں یہ سب پڑھیں گے صرف وغیرہ کی کتابوں میں، تفعل کے وزن پہ تہیّؤ آتا ہے۔ اشفقا،
देखिए खाफा या खाफू मैंने लिखा था डरने के माने में, और यहाँ जो है अशफका। अरबी में कुछ माने ऐसे होते हैं अल्फाज जिसके कई माने भी आते हैं। अशफका के माने शफकत करना भी आता है और एक डर का माना होता है। तो अशफका माने डरा, यहाँ डर का माना डरा। खाफा के माने में जो आता है अशफका, जैसे किसी को किसी पे मोहब्बत की वजह से खौफ हो कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई नुकसान, तो अशफका माने डरा। तो डरने का यहाँ माना आता है अशफका, इस पे कोई इशफाक, ये बाब इफाल से ये आता है। हाँ, इसी लफ्ज़ से इशफाक, मुशफिक, मुशफिक माने नरम दिल भी होता है, लेकिन यहाँ डरने का माना है। हाँ, रहिमा, रहिमा माने होते हैं रहम किया, उर्दू लफ्ज़ है रहिमा यरहमो, रहम किया, किया, ये बाब समिया से आता है, रहिमा यरहमो, रहम किया। यहाँ सहा, आपने सहा एक लफ्ज़ पढ़ा था, दुरुस्त, तंदुरुस्त हुआ, सही हुआ। यहाँ सहा लफ्ज़ दिया है, फ़अला के वज़न पे आता है, इसके वजह दुरुस्त किया। यहाँ लिखे सहा, सहा, तस्हीह, इसे उर्दू में तस्हीह उर्दू लफ्ज़ इस्तेमाल भी करते हैं। यहाँ माने होगा दुरुस्त किया, दुरुस्त किया। तो दुरुस्त किया ये जो है सहा बोलते हैं। ये बाब तफ़ईल, अभी एक लफ्ज़ गुज़रा आपका पहले, तस्हीह तफ़ईल के वज़न पे आता है। हाँ, इन अक़दा, ये कुछ अल्फाज नए तौर पे आ रहे हैं, हालांकि इसमें 3 हर्फ़ ज़्यादातर आते हैं। तो इन अक़दा, इन अक़दा, मुनाकिद होना उर्दू लफ्ज़ है। आप कहते हैं कि फलां जगह प्रोग्राम मुनाकिद किया, फलां चीज़ का इनेकाद उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तो इनक़दा माने मुनअक़िद हुआ, या मुनअक़िद इसी इनेकाद ही से बना है, मुनअक़िद हुआ, बाब इनफ़िआल से आएगा। इसका वज़न आता है इनफ़िआल, इनफ़िआल, तफ़ईल, इफ्तिआल, इस्तिफ़ाल। ये कुछ ऐसे अबवाब है जो अभी आप नहीं पढ़े इनके बारे में ज़्यादा, तो आप सिर्फ लिख लीजिए। इनफ़सख़ा, इनफ़सख़ा फस्ख से बना है, कोई चीज़ ख़त्म की जाती है तो उसके लिए कहते हैं इनफ़सख़ा। फस्ख माने ख़त्म करना। बर्खास्त हुआ, बर्खास्त मतलब ख़त्म, जैसे महफिल बर्खास्त हुई यानी महफिल ख़त्म हो गई, तो इनफ़सख़ा, बर्खास्त, बर्खास्त हुआ, इनफ़सख़ा, बर्खास्त हुआ। ये भी बाब इनफ़िआल ही से आता है, बाब इनफ़िआल, इनफ़सख़ा। इसी तरीके से सागा या सोगो, देखिए सागा या सोगो, ये सिक्का का जो बनाते हैं, सोनार जो है, कोई चीज़ जेवरात को ढालते हैं, तो सागा या सोगो माने बनाना या ढालना। तो सागा माने ढाला, ढाला, सागा या सोगो, ये बाब नसरा से आता है, किसी चीज़ को ढालना, बनाना। यसूगो ढालता या ढालेगा, यसूगो, सागा यसूगो माने ढालता है या ढालेगा, ढालता है या ढालेगा। तो यहाँ बाब नसरा से आएगा, ढालता है या ढालेगा। खाता यखीतो, देखिए खाता, ख़याता, या आप सुने हैं आलतुल ख़याता, सिलाई मशीन को कहते हैं। तो यहाँ खाता लफ्ज़ दिया, खाता माने सिला, खाता माने सिला। तो सिला, खाता यखीतो बाब ज़रबा से आता है। तो यखीतो ये फ़िल मुज़ारी इसका आता है, यखीतो, खाता यखीतो, खाता यखीतो। सिलता है या सिलेगा, सिलता है या सिलेगा, ये भी बाब ज़रबा मुज़ारे है। यज़रिबो, यखीतो था यखीतो कर दिया, थोड़ा से चेंज कर दिया पढ़ने में। जाआ यजू, यहाँ देखिए भूख लगती है, भूखा हो गया आदमी, तो कहते हैं जाआ, भूखा हुआ, जाआ, भूखा हुआ, भूखा हुआ। जाआ यजूओ, ये बाब नसरा से आएगा, इससे जू आता है भूख के लिए। शबआ,
देखिए अब अगर आदमी भूख से खाना खाया आसूदा हो गया तो उसके कहते हैं शबिआ। शबिआ माने आसूदा हुआ, शबिआ आसूदा हुआ, पेट भर गया, उसको कहते हैं शिकम सैर हुआ या जो है आसूदा हुआ। ये बाब समिया से, शबिआ यशबउ। ऐसे अतिशा, भूखा जैसे जा था, अब अतिशा लिख लीजिए, प्यासा हुआ, अतिशा। ये अल्फाज आपको जरूरत पड़ेगी बोलने की बार बार। अतिशा प्यासा हुआ, जिसके बारे में मालूम हो प्यासा है तो उसको कहते हैं अतिशा, उसे प्यास लग गई, प्यासा हुआ, तो ये अतिशा बाब समिया ही से भी है। एक जमिया, इसी का एक माना अतिशा की तरह जमिया भी है, जमिया। तो जमिया माने भी प्यासा हुआ। अतिशा और जमिया दो लफ्ज आता है, प्यासा हुआ। तो जमिया बाब समिया के वजन पे ये भी है, और अतिशा दोनों जो है एक ही माने में है और एक ही बाब से हैं दोनों। इरतवा, इरतवा लफ्ज है, इसके माने होते हैं सैराब हुआ, तवा। इरतवा इरतवी, ये बाब इफ्तियाल से आता है, इसके माने सैराब, यानी पानी पी के आदमी क्या होता है, आसूदा होता है, उसका पानी से जो है जरूरत पूरी, तो कहे सैराब हुआ। सैराब होना कभी खेती के लिए भी बोलते हैं इरतवा, और अगर पानी पी के आदमी जो है उसकी जरूरत पूरी हो तो इरतवा सैराब हुआ, उसके माने में आता है। ये भी बाब इफ्तिआल का वजन इसका बनेगा, इरतवा इफ्ताला के वजन पे। हाँ, सका, सका यस्की, सका माने होते हैं पिलाया, कोई पानी पिलाता है उसको कहते हैं सका। उर्दू में साकी आप सुनते हैं, तो सका लफ्ज जो है ये पिलाने के माने में आता है, तो सका माने पिलाया। तो पिलाया, जो पिलाने वाला उसको साकी बोलते हैं, साकी, सका पिलाया। ये बाब ज़रबा से आएगा, सका यस्की। अलका, एक लफ्ज है अलका, कोई चीज आप कहीं रखते हैं, डालते हैं किसी चीज में, तो अलका माने डाला, अलका माने डाला, कोई चीज किसी में अगर डालते हैं, रखते हैं तो डाला। ये लफ्ज जो है इल्का इफ़आल के वजन पे आता है, अलका युल्की, बाब इफ़आल से इसका ये बनता है, इसका वजन जो आता है इल्का इफ़आल के वजन पे, अलका युल्की इल्कान। हाँ, ताइमा, एक लफ्ज है ताइमा, ताइमा आप ताआम सुनते हैं, ताआम शराब, तो ताइमा आप के माने खाया, खाना जैसे होता है ताआम खाना, और यहाँ ताइमा माने ये फेल है तो इसके माने हो गया खाया। ताइमा बाब समिया से आता है, ताइमा यतअमु, खाया, चखने का भी माना आता है ताइमा यतअमु से। हाँ, अगर किसी को खिलाता है कोई तो उसके लिए अतअमा आता है, अतअमा। ताइमा तो अपना खाने को कहेंगे, अगर आप किसी को खिला रहे हैं तो उसको कहेंगे अतअमा, खिलाया, यानी खुद नहीं बल्कि किसी और को खिलाया, उसको अतअमा। ये भी बाब इफ़ाल से, अतमा इताम, इफ़ाल के वजन पे ये लफ्ज आता है, इसका बाब इफ़ाल बनता है, इताम इफ़ाल। बका यबकी, बका लफ्ज आता है रोने के लिए, जैसे बच्चा रोता है तो कहते हैं बका तिफ्ल, बका रोया, बका यबकी रोया, तो रोने के लिए लफ्ज बोका, आहो बोका आप उर्दू में सुनते हैं, इसी से बना है, तो यहाँ बाब ज़रबा से ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, ज़रबा यदरिबो बका यबकी। हाँ, यबकी भी लिख लीजिए, फेल मुदारे इसकी, इसका फेल मुदारे आता है यब की, यबकी माने रोता है या रोएगा, रोता है या रोएगा, तो बका यबकी, रोता है या रोएगा। ज़हका, यहाँ देखिए स्वाद सहका लिख दे, आप उसको ज़हका कर दीजिए, फेल माजी यह है ज़हका, ज़ाद हा काफ, तो यहाँ ज़हका हंसने के लिए लफ्ज आता है ज़हिक, तो ज़हका हंसा, हंसा, ज़हका बाब समिया से आता, ज़हका यज़हको, समिया यस्माओं के वजन पे। हाँ, इसी तरह हंसने की एक किस्म तबस्सुम उर्दू में बोलते हैं, तबस्सम माने मुस्कुराया, तबस्समा, तबस्समा, तबस्सुम फरमाया आप उर्दू सुनते हैं, यहाँ माना क्या है मुस्कुराया,
तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराया, वही लफ्ज है। हाँ, ये तफाउल के वजन पे आता है, तबस्सुम तफाउल। आप तबस्सुम जो बोलते हैं इसी तफाउल तबस्सुम एक वजन पे आएगा। हाँ, नव्वरा नूर से लफ्ज बना है, नव्वरा रोशन किया, नूर से बना है नव्वरा, नव्वरा, नव्वरा माने रोशन किया, रोशन किया। ये जो है नव्वरा युनव्विर तनवीर, ये तफईल के वजन पे आएगा। तनवीर आप उर्दू में सुनते होंगे, तनवीर नाम भी रहता है, नव्वरा युनव्विरो तनवीर, तफईल के वजन पे। अत्फा, अब जैसे चिराग जलता है तो जलाने के लिए लफ्ज औकदा इस्तेमाल करते हैं, नव्वरा करते हैं। अब बुझाने के लिए कहते हैं अत्फा, चिराग अगर बुझाना तो कहेंगे अत्फा, बुझा दिया, अत्फा माने बुझा दिया। ये भी बाब इफ़ाल से, अत्फा इत्फा, ये बाब इफ़ाल से आता है। इंतबहा, इंतबाह उर्दू लफ्ज होता है, वार्निंग देने के लिए आता है। इंतबाह, इंतबाह उर्दू में जो होता है वार्निंग के लिए, और यहाँ इंतबाह माने बेदार हुआ, इंतबाह बेदार हुआ। कोई आदमी जो है मुतनब्बे हुआ, बेदार हुआ, तो इंतबाह बेदार हुआ। ये भी इफ्तिआल, बाब इफ्तिआल से आता है, इंतबाह इफ्तिआल, इंतबाह इफ्ताला के वजन पे आता है। हाँ, इसी तरह एक तो बेदार हो गया उसको इंतबाह कहेंगे, और किसी को बेदार किया है तो उसको कहते हैं नब्बहा, इसी से तंबीह बना है। नब्बहा माने होते हैं तंबीह किया, तंबीह मतलब बेदार किया। कोई आदमी सो रहा है उसको जगा दिया तो कहते हैं उसको बेदार किया। नब्बहा माने बेदार किया, एक है बेदार हुआ यानी अपना हो गया, और नब्बा माने किसी और को बेदार किया। तो ये बाब तफईल के वजन, तंबीह तफईल, तंबीह और तफईल एक जैसे आप देख रहे हैं। तवज्जा, आप जो है नमाज के लिए क्या करते हैं, वुजू करते हैं, तो उसके लिए अरबी में कहते हैं तवज्जा। अब ये अल्फाज हमारे काम के लिए हमेशा आप इस्तेमाल करते हैं, वुजू किया, तवज्जा माने वुजू किया। ये भी तवज्जा जहाँ भी ते आ रहा है, ये तशदीद है तीसरे हाथ पे, उसमें तफ़अला जैसे है उसी वजन पे, तवज्जा तफ़अला, तो इसका वजन जो बाब बनता है तफ़अउल, तफ़अउल तवज्जो। सल्ला, नमाज पढ़ने के लिए आप क्या कहते हैं, सल्ला युसल्ली माने नमाज पढ़ा, सल्ला माने नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ा। ये भी बाब तफ़ईल से आता है, बाब तफ़ईल, सल्ला युसल्ली तस्लियतन तफ़ईलतन तफ़ईलन आता है। हाँ, मसहा यमसहु, मसा करना, पोंछना, मसहा, मसहा माने पोंछा, मसे किया भी बोलते हैं, लेकिन अरबी में मसा मतलब कोई चीज पोंछते हैं उसको कहते हैं मसहा, पोंछा। ये भी बाब फतहा से आएगा, फतहा यब तो मसहा यम सहो। इश्तगला, मशगूल हुआ, इश्तगला। हाँ, इश्तगाल उर्दू में भी इस्तेमाल आते हैं, मशगूल हुआ, मशगूल हुआ। ये बाब इफ्तिआल से आएगा, इफ्ताला इश्तगला। तो बच्चों ये अल्फाज जितने आप अभी पढ़े हैं, ये सारे अल्फाज उर्दू में भी बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल होता है। हाँ, तो ये तवज़्ज़ा है, सल्ला है, मसहा है, इश्तगला है, इंतबहा है, नब्बा, ये सारे अल्फाज जो है किसी न किसी सूरत में उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। तो आप इन अल्फाज को जो है गौर से पढ़िए और याद कीजिए और जुमलों में इस्तेमाल करते रहिए। इंशाअल्लाह हम बाद में और अल्फाज दिखाएंगे। टाइम खत्म हो गया है, हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई+ टीवी पर अल्हम्दुलिल्लाह 140 से ज्यादा उलमा इकराम के प्रोग्राम्स, 16,000 से ज्यादा दीनी वीडियोस, हर हफ्ते 35 से ज्यादा इल्मी और दावती लाइव स्ट्रीम्स, उर्दू, इंग्लिश और बंगला जुबानों में काम।
आई प्लस टीवी मोबाइल ऐप, स्मार्ट टीवी ऐप और आई प्लस रेडियो पर 24 घंटे लाइव प्रोग्राम्स, 40 से ज्यादा सोशल मीडिया ऐप्स पर डेली वीडियो अपलोड, 13 यूट्यूब चैनल्स, अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बेकार इल्म वाले उलमा, इस्लाम की सही तालीमात लोगों तक पहुंचाना और दीन की दिफा, इस काम को आपको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सपोर्ट I+ TV। डोनेशन देने के लिए 9588888826 पर कॉल करें।